Okay, guys. So today we will solve this past paper, and the past paper is from the Cambridge 4024. It's a paper 1 2 May June 2022. This paper had 80 marks, and the time required was 2 hours, right? So one by one question explain करूँगा. So can you please tell me that can you attempt the first question part A and part B? Who? Yes, sir. जी बेटा can okay do attempt the question. But if the denominators are not the same, So we uh, will make them same. we will take the LCM. No, 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 no. Don't Or we be have in to that just do kind the of simple addition. like no. Like for example, Division और multiplication में होता है. yeah. So for example, अगर आपका denominator same नहीं है तो आप इसके denominator को पहले same करेंगे, ठीक है? So we can see that this is 6 and this is 3, right? I can make this 3 a 6 by multiplying this side by 2 only. Agree? Sir, So and 2 that 2s are other 4 side का and one. now the denominators are same, right? In Yes, addition sir. and subtraction, we So make the 5 plus. denominator same. Yes, so 4 plus 1 is equals to 5 divided by 6. ठीक है बेटा? Clear? Now the second question is multiply the decimals. So the best technique is to remove the point. So it would be 4 by 10 and 2 by 10, right? So it would be 8 divided by 100. So 8 divided by 100 is 0.08. 0.08. ठीक है? Get it? So that's how we will solve the question without the use of calculator. ठीक है जी. Okay, Barira, you just joined. तो पार्ट ए में वी जस्ट कंपेयर द डिनोमिनेटर्स. हमने डिनोमिनेटर को सेम किया और बस ऐड कर दिया. पार्ट टू में डेसिमल को रिमूव करके वी मल्टीप्लाइड और फिर 100 को यूज़ करते हुए हमने 2 डेसिमल्स टुवर्ड्स द लेफ्ट लगा दिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में it's a pictogram, and pictogram says that Asha is asked a group of students about their favorite fruit, and the table and pictogram shows some of the fruit. So it means that they say that this one circle will represent four people. So it means that there are 8 apples, so I have to draw 2 circles, right? So it means that in banana we have 3 circles, so it means this is 12. How? 4 plus 4 plus 4. And for orange we have 5, so draw one circle complete और एक सेक्टर आप बना देंगे like that. ठीक है. It's a 25% of the circle. And melon there are 4 and this is 3, so 4 plus 3 is 7. Get it? So now they say that write down the mode. Mode is the most repeated value, right, Barira? So the most repeated value of this data is banana, because banana is the favorite fruit of 12 people. Get it? Get it, everyone? Can I proceed? Yes or no? Yes, sir. Okay. Moving forward, they say that A and B are the vertices of a quadrilateral, and line L is the line of symmetry. Okay, what a line of symmetry is? It is a mirror line. It is a mirror line. Okay, it's a mirror line. So find the coordinate of other point vertices of the quadrilateral. So for sure, if this is B, so that must be the B dash, the reflected image of B. Agree? And if this is A, so that must be the image of A dash. So I will join the shapes now, joining this with this one and this with this one, and we can see that these two lines are parallel, so we can join the shape. Okay, this was a quadrilateral and this given line was the line of symmetry, and name of this quadrilateral is trapezium. Okay, because these two lines are parallel, they will never intersect each other. They say that find the coordinate of other two vertices. So Barira, can you tell me what are the coordinates of B dash? Yes, sir. 3 and 4. 3 and 4 is the And 2 coordinates and of A 4. dash. Okay, 3 and 4. Yeah. And 4 and 2 बोले And बेटा, x एक्सिस पहले बोला करे. अच्छा जी. ठीक है जी. आप x एक्सिस पहले लिख दिया और y एक्सिस बाद में, तो you will get 0.
बिकॉज कोऑर्डिनेट्स में वी हैव x एक्सिस पहले एंड y एक्सिस बाद में. They say that temperature inside Luke house is 18 degrees centigrade. The temperature outside the house is minus 3 degrees centigrade. Find the difference. So difference in maths is minus. Difference is maths is what? Subtraction. So 18 minus into minus 3. So 18 plus 3 is what? The difference between the outside temperature and outside temperature is 21 degrees centigrade. Okay. Okay. Then they say that Luke thermometer measures the temperature correct to the nearest degree. So nearest degree means 1. So 1 divided by 2 is 0.5. So keep this in mind that this is our error. Now at midnight the temperature measures the temperature outside is minus 6 degrees centigrade. Find the upper bound. So upper bound means that we will add the accuracy. So for example we will add the accuracy. अगर question में होता कि find the lower bound तो हम 0.5 minus करते हैं. तो minus 6 degree plus 0.5. The answer is minus 5.5 degree. Get it? समझ आ गई बेटा? Can I proceed? Sir. Okay जी. So the scale drawing shows the position of two villages A and B, and the scale is 1 centimeter to 2 kilometer. So this is the scale given to us in a question. So for example, in the first day, find the actual distance. So let's measure the distance using ruler. आपके पास रूलर में वैल्यूज लिखी होती हैं, मेरे पास रूलर में वैल्यूज नहीं लिखी, लेकिन ये जो एक एक बॉक्स है ये है तकरीबन 1 सेंटीमीटर का. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 8.6 8.7 आ रही है मेरे पास वैल्यू. सो लेट्स सी 8.7. नाउ 8.7 मल्टीप्लाई बाय 2. अब कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो आपने विदाउट कैलकुलेटर इसको कैसे करना है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपने एरर नहीं करना पेपर में. सो लेट्स चेक. तो हम लोग 8.7 को लिख सकते हैं 87 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 87 का जो डबल है वो कितना हो गया. मैं क्यों टू की और 10 की कटिंग नहीं कर रहा, वो आपको भी पता लगेगा. व्हाट इज द डबल ऑफ 87? तो 87 प्लस 87 कर लें 14 17. ये आ रहा है जी 174. सो 174 डिवाइड बाय 10 इज 17.4. यस और नो? अगर 10 को हम रिमूव कर देते नीचे से तो हमारे लिए डेसिमल बनाना मुश्किल हो जाता. नाउ दे से दैट मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इनको हम लोग ज़रा ज्वाइन कर देते हैं. तो ये डॉट्स में बता देता हूँ एंड लेट्स ज्वाइन दीज टू लाइन्स. तो इन दोनों लाइन्स को आप आपस में ज्वाइन कर दें. ए और बी आपस में हो गया जी ज्वाइन. तो ये हो गया जी ज्वाइन. ओके. नाउ दे से मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. तो इसका मतलब ये है बरीरा कि आप ए पर खड़ी हैं और ये आपकी आई साइड है, मतलब आप यहाँ पर देख रही हैं, ठीक है. And you want to see B. So bearing is a clockwise rotation from the north, and we can see that this is the clockwise rotation from the north. We have to measure this angle using protractor. हमें प्रोटेक्टर के जरिए इस एंगल को मेजर करना है कि ये एंगल कितना आता है, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हमने कल ये एंगल मेजर किया था तो ये एंगल 73 डिग्री आता था. कितना डिग्री? 73. और प्रोटेक्टर मतलब D रखकर आपने D को इस पोजीशन में रखना है. ओके, आपने D को इस पोजीशन में रखना है लाइक दैट. और डी का जो सेंटर है वो यहाँ पर होना चाहिए. तो ये एंगल आपको 73 मिल जाएगा. ठीक है बेटा, समझ आ गई कि नहीं? इज इट क्लियर? तो वी हैव टू राइट 073. 073 क्यों लिखते हैं बरीरा? बिकॉज बेरिंग इज ऑलवेज 3 डिजिट्स. ऑलवेज 3 digits. हाँ जी. तो 99 तक हमें 099 लिखना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. हूर बेटा, do you understand this? Yes, sir. Okay. Now they say that, now read the question very carefully. Kabir invests $250 in a saving account and the account pays simple interest. Okay, जैसे ही आप लोग simple interest का नाम देखो फॉर्मूला लिख लेना, that simple interest is equals to PRT divided by 100. ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं बड़े डिटेल में. ओके जी. सो रेट इज 1.5% एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है आफ्टर 4 years. सो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं वैल्यूज. सो P इज माई प्रिंसिपल. P क्या है आपका जी? ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है. 1.5% इज योर रेट एंड T इज टाइम इज 4 years. सो लेट्स फाइंड आउट. सो प्रिंसिपल इज 250 मल्टीप्लाई विद 1.5 टाइम इज 4 years डिवाइड बाय 100. ओके जी, ज़रा 1 मिनट फोकस करें प्लीज़, क्योंकि एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट दिस 1.5 into 4. अब देखिए हमें ये पता है कि 1.5 into 4 6 आएगा. यस और नो?
yes or no? Yes, sir. बट लेकिन व्हाट इफ द 1.5 की जगह पे कोई ट्रिकी नंबर हो जहां पे आपको जरा डाउट हो, तो आपने ये करना है, कैन आई राइट 1.5 लाइक 15/10? सॉरी 15/10 मैंने 100 लिख दिया। कैन आई राइट 1.5 एज 15/10? हूर बेटा जरा जल्दी जवाब दें। सो 1.5 को 15/10, अब इस 15/10 को इस फॉर्मूले के अंदर कैसे इंसर्ट करना है, लाइक दैट जरा देखें जी। 250 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 नोमिनेटर में चला जाएगा और नीचे 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई कि मैंने 1.5 को कैसे इस फॉर्मूले के अंदर घुसा दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Sir. ओके अच्छा, टू ईज माई कैलकुलेशन, मैं अपनी कैलकुलेशन को ईज करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो मैं पहले एक जीरो काट देता हूँ, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 15 टाइम 4 इज 60, यस और नो? यस और नो? सो कैन आई कैंसिल वन मोर जीरो? अब देखिए आसानी से करना है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 150 एंड 150 डिवाइड बाय 10 इज, तो ये जीरो जीरो कट गए तो आंसर आ गया जी हमारे पास 15। So total interest he will receive at the end of 4 years is $15. How many? लेकिन बरीरा, what if the question is that how much is the final amount? तो what is his final amount after 4 years? 4 साल बाद उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे? Final amount, interest नहीं। बरीरा, Sir. after 4 years he'll get how much? $15. देखें फ्यूचर वैल्यू जो होगी ना इस इन्वेस्टमेंट की, वो होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 250 उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 15 उसको इंटरेस्ट मिले, और वो 265 बनते हैं। इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, लेकिन आपके पेपर में ये चीज भी आ सकती है, ठीक है। ठीक है। तो फाइनल अमाउंट ये है। अभी इन्होंने यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मांगा था, ठीक है। हूर ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज, हूर बेटा आप अपना माइक टाइम पे ऑन करा करें। अच्छा, मैं यहाँ पे हूर हूर करता रहता हूँ और यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही होती मुझे। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 85 मिलीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द शेडेड एरिया। तो हमें पता है कि शेडेड एरिया निकलेगा कैसे। वी विल सब्ट्रैक्ट द ट्राइंगल फ्रॉम द रेक्टेंगल, rectangle minus triangle, right? But there is a problem now. The unit of the area of the rectangle is centimeter square and the unit of this is millimeter square. तो हमें इन दोनों को सेम बनाना है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जरा 85 मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हूर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? Sir, 1000 or 10? No, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। में स्केल दोबारा लिख रहा हूँ, जरा समझ डालें। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ओके जी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एग्री? जी सर। आपने ये याद करनी है। अच्छा, ओके। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आ गए हैं आपके पास, आपको स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्केल में स्क्वायर है, तो आप इनकी स्क्वायरिंग कर लें। तो हूर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर के, यस और नो? 10 का जी स्क्वायर इज सर। 100। जी नाउ सर। वी नीड टू कन्वर्ट दिस 85 मिलीमीटर। तो 85 मिलीमीटर स्क्वायर को इस साइड पे लिखें, यहाँ पे x कर दें। क्या करेंगी? x, ओके। सो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 85 इज द सेम थिंग एंड दैट वुड बी 100x, यस और नो? सो डिवाइडिंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो 100 को बोथ साइड्स पे डिवाइड किया, तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो? Sir. So rectangle is 9 minus 0.85. So 9 minus 0.85 is 8.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? आपको डेसिमल माइनस करना आता है कि नहीं? अगर नहीं आता तो ये तरीका है, 9.00 लिख रहा हूँ,
हाँ जी, और So पॉइंट के it's नीचे 6. लिखेंगे 85 और ये हो गया जी 0। और टू सब्ट्रैक्ट द डेसिमल माइनस करें तो आपको पता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। और अब हमने कैरी करने हैं। सो 9 में से यहाँ पर गया 10 हो गया, ये 9 बन गया, ये यहाँ पे गया 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, तो ये 8 बन गया था, और 8 में से 0 गए तो 8 ही आता है। तो बरीरा आपकी क्लास क्यों लीव हो रही है बार बार? बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई है बरीरा? जी जी सर, मुझे ये मैंने ऑलरेडी आपकी रिकॉर्डिंग देख चुकी हूँ, तो मैंने ये समझ लिया सब कुछ। ओके, इट्स अ पेंटागन। पेंटागन में हमें पता है कि टोटल इंटीरियर एंगल हमें पता होना चाहिए। तो टू फाइंड आउट द टोटल इंटीरियर एंगल n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 इज द फॉर्मूला। तो 5 साइड्स होती हैं पेंटागन की, मल्टीप्लाई बाय 180। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 540। एग्री? सो आपने 540 में से इन सब एंगल्स को माइनस करना है। 540 माइनस 110 माइनस 125 माइनस 65 माइनस 95। सो द आंसर इज, तो आप लोग ये रफ वर्किंग में कर लीजिएगा, ठीक है? ये मैं कल कर चुका हूँ एक दफ़ा। तो 540, तो पहले आप इन सबको ऐड कर लें। 110 प्लस 125 इज़ 135, and 235 plus 65 is 300 plus 95 is 395, तो 540 minus 395, so the answer is 145 degrees। ठीक है जी, तो आपके पास एक आंसर आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो Sir. आंसर ऑफ ए इज 145। बेटा एनी क्वेश्चन हूर एंड बरीरा? ये कल हम कर चुके हैं, No रिकॉर्डिंग में है ये question. चीज़। ओके जी। Moving forward, they say that Shani makes a sequence of pattern using counters. So pattern है number of counters, तो 3 के बाद 8 हुए हैं तो प्लस 3 हुआ है, yes or no? 8 plus 3 is 11, so 11 plus 3 is what? 14, and 14 plus 3 is 17। And we studied in the sequences that the sequence is arithmetic sequence, and arithmetic sequence का formula है an is equals to a1 plus n minus 1 into d। तो a1 is the first term, the first term of the sequence is 5 plus n minus 1 and the difference is plus 3। सो अलजबरा के ज़रिए हमें पता है कि 3 पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 प्लस 3n माइनस 3, अरेंज करें। 3n प्लस 5 माइनस 3, सो एंड में फार्मूला इज दैट an इज इक्वल टू 3n प्लस 2 इज द फाइनल आंसर। So 3n plus 2. So 3n plus 2 is the formula for this sequence. Anyone having any question? हाँ सर। मोस्ट प्रोबेबली पेपर 1 में जो होता है ना, अरिथमेटिक सीक्वेंस ही होता है, क्योंकि बाकियों में पावर आती है ना। ओके जी। Now they say that Shani has 100 counters, so please pay attention. Shani has 100 counters. She uses some of the counters to make pattern 20, and we have the formula for the number of patterns का formula। ठीक है जी। So put, पहले ज़रा देखते हैं कि शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक पैटर्न के, तो बाकी उसने एक पैटर्न के बनाया है, और कौन सा पैटर्न बना वो हमें नहीं पता। सो हम लोग पहले ज़रा देखते हैं कि 100 काउंटर्स हैं, तो हम लोग इसमें 3 की जगह n की जगह पे 20 पुट करते हैं। सो वी गॉट द 62, इसका मतलब है शी मेड पैटर्न नंबर 62, उसने बनाया, और शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग। सो रिमेनिंग कितने रह गए? 100 माइनस 62 इज 38, यस और नो? और बाकी 38 काउंटर से उसको कौन सा पैटर्न मिला? वी नीड टू फाइंड दैट। सो 3n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 38। सो 3n इज इक्वल्स टू 38 माइनस 2, 3n इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। सो n या k, इस क्वेश्चन में k है तो n की जगह पे मैं k लिख दूंगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 12। राइट बेटा, समझ आ गई? ये वाला और क्वेश्चन समझ आइए बेटा? हुआ जी बेटा। जी सर। सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन देखें क्या लिखा है कि शानी के पास टोटल 100 काउंटर्स हैं। कितने काउंटर्स हैं? ओके, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20। इसमें से कुछ काउंटर्स उसने यूज किए हैं ताकि पैटर्न 20 बन जाए, तो हमने वो 20 को फॉर्मूले में पुट करके देख लिया कि उसने कितने काउंटर्स इस्तेमाल किए हैं। एग्री? सर यस और नो? ओके, थर्ड लाइन है शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कैसे निकलेंगे? 100 माइनस 62, तो वी गॉट 38। एग्री?
अब उन 38 काउंटर से उसने पैटर्न के बनाया है, तो इसका मतलब है हमने इसी फॉर्मूले में n को सब्जेक्ट करना है कि नंबर ऑफ पैटर्न कौन सा था, कौन सा पैटर्न बनेगा 38 से। एग्री? इससे 100 काउंटर से जब उसने पैटर्न नंबर 20 बना लिया ना, तो उसके बाद 38 रह गए, और 38 से ही शी कैन मेक ओनली पैटर्न नंबर 12। एग्री? यस सर। ओके, नाउ दे से दैट अ बैग कंटेन रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स। तो फिर नीचे लिखा हुआ है कि रेड टू ब्लू इज 3:8 एंड ग्रीन टू ब्लू इज 2:5। तो पहले जरा इनकी रेशोज लिख लें, इस तरीके से लिखनी है, रेड रेशो, ओके सॉरी मैंने हाइलाइटर लिया हुआ है, इट्स रेड रेशो ब्लू रेशो green. In the first line, red ratio blue is given, that is 3:8. In the second line, green ratio blue is given, तो green की रेशो है 2 and blue की रेशो है 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5:2। समझ आ गई बेटा? अरेंज करने हैं सही तरीके से। एग्री? यस और नो? अच्छा, इनकी कंबाइंड रेशो फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है, जरा इसको याद रखना है अच्छा आप लोगों ने, कि 3 5s are 15। Now multiply these two, 8 5s are 40। Now multiply this with this, 8 2s are 16। समझ आई बेटा? क्योंकि रेड और ब्लू का रिलेशनशिप गिवन था और ब्लू और ग्रीन का रिलेशनशिप गिवन था, दोनों में कॉमन चीज जो थी ना वो ब्लू थी। गेट इट? जी बेटा, समझ आई है बरीरा? सर तो इसमें बस हमेशा आपने ये याद रखना है कि मैं यहाँ पे कलर्स के जरिए समझा रहा हूँ, जरा देखें प्लीज, कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस वन, द टॉप वन विद दिस वन, और ये थर्ड वाला जो है ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कलर्स आपने याद रखने हैं, ठीक है बेटा? ओके जी। कहते हैं, ये मैंने कल सिखाया था लेकिन अभी आप सीख लें ज़रा। यूज अ स्ट्रेट एज एंड कंपास ओनली टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PSR। तो PSR से मुराद है ये वाला एंगल, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब है कि यू हैव टू ओपन द कंपास, आपने कंपास ओपन करनी है, एक आर्क लगाना है ऐसे, ठीक है, पेंसिल के साथ, ठीक है बेटा? एंड वंस यू आर डन विद द आर्क, आपने कंपास को चेंज नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है बरीरा? सर फिर कंपास को आपने इस कॉर्नर पे रखना है और एक आर्क लगाना है ऐसे, ठीक है बेटा? फिर उसी कंपास को आप इस कॉर्नर पे रखें और एक आर्क ऐसे लगा दें। समझ आई? तो जहां पे ये आर्क लगा है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो आपने इस PSR के ऊपर इसको इस तरह सेट करना है और ये आपने करना है ऐसे ज्वाइन, ठीक है जी? फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही बनेगा। तो ये कंपास के जरिए बहुत अच्छे तरीके से होता है। पॉइंट X लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड इज क्लोजर टू PS। तो PS के करीब है, SR RS के नहीं, तो इसका मतलब है दिस एरिया इज नॉट इंक्लूडेड। एग्री? दे से दैट शेड द रीजन इन विच X मस्ट लाई। तो X वहां पे होना चाहिए, तो आपने ये वाला सारा रीजन जो है ये शेड करना है, ठीक है बेटा? तो बाहर शेडिंग नहीं कीजिएगा, अंदर ही शेडिंग करें। अच्छा, थोड़ी बहुत शेडिंग अगर बाहर निकल जाती है तो इरेजर से इसको सफाई करनी है पेपर में भी, ठीक है? ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हर साल सवाल आता है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, दे से दैट राइट 0.00203561 करेक्ट टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर नंबर एंड हुर लुक एट द नंबर प्लीज। 0 टू द Sir, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। दिस इज माय फर्स्ट वन, दिस इज माय सेकंड वन एंड दिस इज माय थर्ड वन। यस और नो? 200.561. देखें अब जरा, this is my first, Point second and third, five. the circled ones. Agree? जी And sir. look at the number after 3, it is greater than 5, so we will add 1 to the 3, so write 224. 0.00204, so this is your final answer. बरीरा समझ आइए?
जी सर. Okay जी. By writing each number correct to one significant, estimate the value of. अच्छा, one significant पहले जरा underline करते हैं. This is my first significant number. This is my first significant number, and this is my first significant number. Agree? Okay. So number after 3 is 9, so I have to add 1 here, so it becomes square root 4. Yes or no? Yes sir. Multiply by number after 6 is 3, so ignored, so answer is 60. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Sir. Divide by number after 4 is 2, which is less than 5, so ignored, so the answer is 0.4. Agree? This question has 2 marks. You will get 1 mark straight away here if you give these values. Okay, we know that square root 4 is 2, so 2 multiplied by 60. Can I write the division like this? Haji, can I do this Yes in sir. place of fraction? So 2 into 60 is 120. Divide by 4 by 10. Right, Hur? मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया. जी सर. नाउ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं. एग्री? सो 4 1s are 4 and 4 3s are 12, तो 30 आ रहा है. 30 into 10 is 300. आपको दूसरा नंबर जो है वो 300 आंसर पे मिलेगा. ठीक है बेटा, क्लियर है? जी सर. ओके जी. नाउ दे से दैट एवेल्युएट. एवेल्युएट का मतलब होता है कैलकुलेट. क्या मतलब है जी? कैलकुलेट. तो पहले हम देखते हैं कि अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. एक हमारे पास स्क्वायर रूट है और एक हमारे पास क्यूब रूट है. तो स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3, राइट? यस और नो? And cube root of 64 is equals to 4. 3 4s are 12 and 12 square is 144. Agree? Is it clear? Yes sir. Okay, now then they say write down an irrational value. Okay, irrational values होती क्या हैं सबसे पहले ये सीख लें. Irrational values which cannot be represented by any fraction, which cannot be written as fractions. So normally square root of non-perfect squares. So let's check. So Barira, Yes sir. okay, square root 4 is equals to 2, right? Square root 9 is equals to 3. Square root 16 is equals to 4. And square root 25 is equals to 5, right? Yes sir. They say that write down an irrational value between this which satisfy this inequality के जो इनके दरमियान में आ जाए. Agree? Yes or no? Yes So sir. what if, because I cannot write square root 36 because the answer is what? It is 6. Agree? Yes sir. So if I write square root 26, the answer must be in 5.1 something, right? Yes or no? Yes sir. So n can be square root 26. So write square root 26 in the answer. आप कैलकुलेटर पे चेक करें 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगी, इसके दरमियान में आ रहा है. एग्री और नॉट? यस और नो? Yes sir. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड. राइट दीज नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज. तो सबसे पहले इन सब नंबर्स को ओपन करना ज़रूरी है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हटा लें ज़रा. सो दिस माइनस इंडिकेट्स दैट गो लेफ्ट. तो इट वुड बी समथिंग लाइक 2 आप लिख दें. पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4. तो ये हो गया 0.0002. ओके जी, 0.2 इधर लिखें. 2 जम्प्स टूवर्ड्स लेफ्ट 1 2. तो ये हो गया जी 0.02. लेट्स सी. वी कैन सी दैट दिस 2000 इज द मोस्ट बिगेस्ट नंबर. एग्री? एंड द मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस वन 0.0002. सो आई विल राइट हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4. बल्कि ये ना लिख देना. अच्छा,
आपने नंबर लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। जी अच्छा, फिर 002 वाला जो है वो सबसे छोटा नंबर है दूसरे नंबर पे, और ये आपका थर्ड नंबर पे। एग्री? ओके, कल हमने इस क्वेश्चन पे स्टॉप किया था। सो हूर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आगे आती है मैंने जो ऊपर किया है? ये देखें यहाँ पे जो 002 मैंने लिख दिया है ना, ये तो ऐसे लिखना है, लेकिन इसको हमने ये लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। हूर बेटा आपको समझ आ गई ऊपर वाले पार्ट की? जी सर। हाँ जी। अच्छा जी, कह रहे हैं कि दिस इज अ कैलकुलेशन यूजिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर b इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16। हूर बेटा a की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि डिवाइड हुआ है तो 4 आया है? डैश डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4, तो ये आप लिख सकते हैं ना, x divided by 5 is equals to 4. So x is equals to 5 fours are what? 20. Yes or no? Yes or no? जी सर। So I can write 20 here, multiply by 10 raised to the power minus 7, divided by 5, multiply by 10 raised to the power b. Okay. So Barira, we know that when the bases are same, तो अपर में से लोअर माइनस होती है, राइट? तो मतलब कि -7 माइनस b इज इक्वल टू -16। यस और नो? यस और नो? ये वाला ऑल टुगेदर सवाल जरा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये बेटा पहले देखें कभी करा ये नहीं है। देखें ये हुआ क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस हुआ है, एग्री? जी। और इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है? जी तो हमने कहा है कि a डिवाइड हुआ है किसी नंबर के ऊपर के 4 आया है, तो हमने वो नंबर निकाला है, 20 है वो नंबर, ठीक है? जी ये जो लेफ्ट साइड पे मैं राइट हैंड साइड पे मैंने वर्किंग की, एग्री? जी अभी ये b निकालने के लिए हमने इंडिसेस में पढ़ा था, आपको अगर याद हो, हमने कहा था कि जब बेसिस सेम होती हैं एंड देयर इज अ डिवीजन, तो हम लोग अपर में से लोअर को माइनस करते हैं, एग्री? सर, इसकी रिकॉर्डिंग है इस वाले चैप्टर की? हाँ बिल्कुल होगी रिकॉर्डिंग। तो देखिए जरा, -7 माइनस बी हुआ है और -16 आया है आंसर, समझ आई? सर तो -7 माइनस बी, तो अब -16 को यहाँ पे लाएं जरा, -7 माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ये सॉरी, -7 माइनस 16, -7 माइनस प्लस 16 इज इक्वल्स टू बी, एंड बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, तो दैट वुड बी 9। लेकिन अभी जरा इसको यहाँ पे एक मिनट सब्र करें। अच्छा, 20 multiplied by 10 raised to the power minus 7 divided by 5 multiplied by 10 raised to the power what? 9. 10 raised to the power 9। अब एक बात मुझे बताएं जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेप को करने से पहले मैं इस स्टेप को इरेज कर देता हूं। बरीरा सर। बेटा लुक एट द न्यूमरेटर, आप जरा न्यूमरेटर की तरफ देखें, मुझे बताएं क्या ये न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? जी। नो, बिकॉज यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और दिस It वैल्यू कैन has नॉट बी ग्रेटर देन 10। पता नहीं समझ आ गई इस सर, मुझे वैल्यू को? नहीं आ रही समझ। बेटा आपने इंडेक्सेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म की क्लास शायद नहीं ली थी फिर, नहीं ली हुई, इस वजह से नहीं आ रहा। मैं तो रिकॉर्ड। इसीलिए आपको आप स्ट्रगल कर रही हैं थोड़ा सा। सो आपको ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तरीका ये है, ज़रा देखें 20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ज़रा देख लें ज़रा। मैं डिटेल में करा रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए तुम्हें। 20 ये नंबर जो है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर प्लस आएगी, पॉइंट ऑलरेडी यहीं पर है तो इसको यहाँ पर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर प्लस 1। समझ आ गई? सो इसका मतलब है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमने यहाँ पर -7 के साथ +1 करना है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर b। तो अच्छा जी, तो अभी हम लोग इसको करेंगे एक स्टेप इधर,
तो ये हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर b। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। तो ये -7 की जगह पर यहाँ पे चला जाएगा -6, तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -6, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आ गया जी प्लस, तो ये आएगा +10। ठीक है जी। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 10, b की वैल्यू इज 10 एंड a द वैल्यू ऑफ a इज 2। a की जगह पे 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको इस पे डिवाइड करें तो यू विल गेट दिस आंसर, आपको ये आंसर मिलेगा। पूरा आपको समझ आई है बेटा? क्योंकि बरीरा इंडस्ट्रीज और स्टैंडर्ड फॉर्म का लेसन सुनेगी तो फिर उसको समझ आएगी और भी। ओके जी, वेरिएशंस आ गए हैं। y is directly proportional to x minus 1 whole square, so y is directly proportional to x minus 1 whole square। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है बरीरा कि इफ y इज इंक्रीजिंग तो x इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगा देंगे k माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 32 पुट करें क्वेश्चन में, तो 32 इज इक्वल टू k एंड x इज 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। So 32 is equals to k, 5 minus 1 is 4, 4 square is 16. So k is equals to 32 divided by 16. So k is equals to 2. Right बेटा? बरीरा समझ आई बेटा? सर अब कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equals to माइनस, हमारे पास इक्वेशन है तो हम y is equals to k into x minus 1 होल स्क्वायर लिख देंगे। k की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और x की वैल्यू -2 गिवन है क्वेश्चन में। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा बरीरा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -3? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -3 का? जी 9। हाँ जी, +9 आएगा क्योंकि माइनस के ऊपर पावर जो है इवन है तो इट वुड बी 9, सो 2 इंटू 9, सो y इज इक्वल्स टू 18। तो y इज इक्वल्स टू 18। समझ आ गई बेटा? ओके जी, कहता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -5 डिवाइड बाय 5 -3x इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। By drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at x is equals to -1। अच्छा, जरा x is equals to -1 के ऊपर पहले जरा पॉइंट नाप करेंगे तो कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लगानी है टेंजेंट लाइन। अब आपने टेंजेंट लाइन लगाने के दो तरीके हैं कि आपने टेंजेंट लाइन लगाई तो आपने ये टेंजेंट लाइन जो है ना ये अंदर की तरफ नहीं लगानी, ये आपने बाहर की तरफ लगानी है। ठीक है बेटा, टेंजेंट लाइन का मतलब ये है कि खाली इस पॉइंट को टच करे, बाकी किसी पॉइंट को टच ना करे। तो आपने एक लाइन खींच लेनी है अपनी मर्जी की। मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि इतनी खींचें कि जहाँ पे वो ग्राफ के साथ रहे। ठीक है जी, डन। तो रूलर रिमूव करेंगे। अच्छा जी, इस लाइन को थोड़ा सा इधर होना चाहिए था तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं ताकि इसको ठीक करें हम लोग। बस अब ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग ये इतना जूम करके देखेंगे तो पेंसिल भी गैप शो करेगी फॉर श्योर। ओके जी, तो ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट इज राइज डिवाइड बाय रन होता है, राइज डिवाइड बाय रन। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। और y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 वो भी एक सेम ही चीज़ है। तो पहले आप मुझे बताएं बरीरा एंड रूल, द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? लुक एट द लाइन एंड टेल मी। कौन सी लाइन? और बेटा ये ब्लू लाइन जो सामने स्क्रीन पे मैंने लगाई है, टेंजेंट लाइन जो लगाई है x इज इक्वल टू -1 पे, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा क्योंकि लाइन जो है ना वो डिक्रीजिंग पैटर्न के ऊपर है। अच्छा, इस लाइन का राइज देखें जरा कि राइज कितना है, और हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज जो हैं वो ग्राफ में 7 लिखी हैं। कितनी लिखी हैं? 7। सो -7। अच्छा, रन कितना है जरा यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स देखने हैं। तो 1 2
एंड 2.9, तो 2.9, तो -7 डिवाइड बाय 2.9 इज द आंसर। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस 2.9 को जो है आप सॉल्व कर लें। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि -7 ऊपर लिखा हुआ है, तो डिवाइड बाय 2.9 है, तो 29/10 हो सकता है, यस और नो। तो -7 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 29, तो इट वुड बी -70 डिवाइड बाय 29। तो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हम लोग बस यही आंसर एग्जामिनर की तरफ छोड़ देंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. हूर इज इट क्लियर? Okay, by drawing a suitable line on the graph, find the solution of this. Okay, first of all हमें जरा ये ग्राफ की इक्वेशन देखनी है। y is equals to x cube divided by 5 minus 3x. y is equals to x cube divided by 5 minus 3x, कुछ और भी लिखा हुआ है, plus 2 plus 2. This is the equation of the line graph, ये हमें given है। अच्छा जी, x cube divided by 5 minus 3x is equals to 0, तो ये लिखा हुआ है x cube divided by 5 -3x इज इक्वल टू 0। तो बरीरा जी सर। बेटा, इसमें इक्वेशन को कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। सो वी हैव दिस थिंग राइट, एंड वी हैव दिस थिंग सेम, माइनस इज सेम, +3x is missing, we have it, what is missing? +2। हाँ जी, तो यहाँ पे इस साइड पे तो 0 लिखा हुआ है, तो we'll add +2 here and we'll add +2 here। हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। एग्री? we can see that this left hand side is equals to the y, can we see that? मैंने ऊपर लिखा हुआ है। So y is equals to 0 plus 2 is 2, तो y is equals to 2 is the line जो हमने ड्रॉ करनी है। तो y is equals to 2, तो y is equals to 2 लाइन कौन सी होगी? आपको पता है कि वो लाइन ये होगी, yes or no? And Yes. this line is touching the graph from 3 points, you can see that 3 पॉइंट से टच कर रही है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स जो है ना आपने आंसर में लिखने हैं। तो आप, एक है x के आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है x इज इक्वल टू -3.85, -3.85, और यहाँ पर है x इज इक्वल टू +3.85, x इज इक्वल टू +3.85। समझ आ गई है बेटा? बेटा समझ आई है इस क्वेश्चन की? जी सर। गुड जॉब। अच्छा, कहते हैं रेयान सेज ईच डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू डिवाइड इट इनटू कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ड्रॉ अ रिंग अराउंड ईच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन द लिस्ट ऑफ द रेयान स्टेटमेंट। अच्छा, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पहले ये बनाते हैं हम स्क्वायर। ये हो गया रेक्टेंगल, रोम्बस होता है टिल्टेड स्क्वायर, पैरेललोग्राम होता है टिल्टेड रेक्टेंगल, ये होता है ट्रेपीजियम, और ये हो गई आपकी काइट। कहता है कि ईच डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस मीन दो साइडें बराबर होनी चाहिए। जरा चेक करें, क्या इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है? यस और नो? यस सर। ओके, क्या इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है? जी सर। नो, दिस साइड इज Why? डिफरेंट एंड दिस साइड इज डिफरेंट। Oh, व्हाट अबाउट दिस वन? यस और नो? yes. व्हाट अबाउट दिस वन? नो। No. ओके, तो यहाँ पे तो बनते ही नहीं है डायगोनल्स, इस तरह होता है। यस और नो? तो यहाँ पे बनते हैं। So we can say that square, rhombus, and kite. These three are the answers for this. Agree? Agree, beta? Yes sir. Okay. They say that AXB and CXD are straight lines. So who please focus?
x is the midpoint, so means that this angle and this angle is congruent. Agree? तो मैं red करता हूँ इनको. They are same, vertically opposite. Yes or no? Okay. AC is parallel to DB, so these two lines are parallel. So we can see that. Show that triangle AXC is congruent to triangle BXD. Agree? Agree? And X is the midpoint of AB. तो इसका मतलब है this line is equals to this line. Agree? So for sure this line is equals to this line because X is also the midpoint of the CD, right or wrong? Yes or no? Yes, sir. So they say that AX is equals to XB. Reason क्या है? X being midpoint. X being midpoint. Angle X is equals to angle X. So this is vertically opposite. Opposite. Okay. C to X is equals to X to D. X to D because AC is parallel to DB. ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है कि जब ये पैरेलल हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा. Agree? And also X is also a midpoint, so we can say that side angle side postulates के जरिए these two triangles AXC is equals to XDB triangle. Agree? Easy beta. Okay, f of x is equals to 3x minus 7. To find inverse we have 4 steps. 4 step हैं याद रखें. Let f of x is equals to y. f of x y के इक्वल पुट करें तो y is equals to 3x minus 7. दूसरा स्टेप होता है x को सब्जेक्ट बनाएं तो y plus 7 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू x सब्जेक्ट बन गया. तीसरा स्टेप होता है रिप्लेस x विद y. तो थर्ड स्टेप इज रिप्लेस x विद y. तो ये हो जाएगा x plus 7 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू y. एंड दिस फोर्थ स्टेप इज कि y की जगह पे आप f इनवर्स ऑफ x लिख दें. दिस इज x plus 7 डिवाइड बाई 3. दिस इज बेसिक फंक्शंस. ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स आप याद रखें, आपको कोई भी इनवर्स निकाल सकते हैं. तो x plus 7 डिवाइड बाई 3. दिस इज f इनवर्स. ओके जी, नीचे आगे जी सेट्स. सो ये हो गया जी यूनिवर्सल. ए ई आई 3 वॉवल लिखे हैं, ये लिखा है, ये लिखा है. कहता है p यूनियन q. तो यूनियन का मतलब होता है राइट ऑल बट राइट कॉमन वंस. सबको लिखें लेकिन कॉमन को एक ही दफ़ा लिखना है. तो p यूनियन q, तो p यूनियन q. p सेट है हमारे पास a e i. यूनियन इज q है f g h i एंड j. सो हूर आपको मैंने टेस्ट के लिए पढ़ाया भी था. सो बताएं जी इनका यूनियन क्या आएगा. I यूनियन यूनियन राइट ऑल टुगेदर बट राइट कॉमन वंस. A E हाँ जी. I F G H J K. f g j एंड k. एग्री. ओके, कहता है कि फाइंड एन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन. तो पहले पी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि पी आउट. क्या चीज पढ़ाया ना उस दिन आपको मैंने. जी सर. तो पी आउट मतलब कि यूनिवर्सल माइनस पी. तो यूनिवर्सल में से पी को निकाल के बताएं क्या क्या आते हैं. ए बी, नहीं ए तो आउट हो जाएगा ना. ए ई और आई आउट कर देना. जी सर. तो ए ई B और आई आउट कर दी. B हाँ D बोलते जाएं. F G H. ना बी सी डी B F G एफ H. जी एच और जे बी. जे बी है ना. Sir. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. ओके, नाउ दे से दैट क्यू यूनियन आर. तो क्यू यूनियन आर, क्यू और आर का यूनियन करके बताएं. F G H I C D एफ, E. एक मिनट, एफ जी एच आई
जे, सारे लिख देते हैं। अब सी नहीं जी लिखा सर। हमने, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, वो भी नहीं लिखा, ई भी नहीं लिखा, एफ लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जी भी लिखा हुआ है, राइट। नाउ द स्टेटमेंट इज इंटरसेक्शन, इनके दरमियान में राइट कॉमन, तो इनका कॉमन क्या क्या है, जरा शेड करते हैं उनको। एच एफ इज सी। कॉमन, एक मिनट, अच्छा एक एक करके, जी कॉमन है, एच एच भी कॉमन है, कॉमन। जे। हाँ जी, जे इज ऑल्सो कॉमन, और क्या है, सी इज कॉमन, डी। डी इज कॉमन, एंड टी इज कॉमन। बस, बस। राइट। जी तो सर। हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, वी हैव 6 numbers। वी हैव 5 बेटा, वन एक टू दो थ्री तीन, फोर हाँ फाइव ना ना, सिक्स या वी हैव 6, सो एन जी इज सर। इक्वल्स टू 6, क्योंकि उन्होंने नंबर मांगे हैं, ठीक है बेटा। जी सर। चलें बेटा, बरीरा भी मिस कर चुकी है क्लास, अभी आखिरी 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। सर अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।